Now, good afternoon, everyone. Let's start with exercise 14.5. First question. From question number first to question number 9th. Same method we will use. Single method, same method. Fine. So listen to me very, very carefully. Sometimes you will observe the word axis of symmetry. Sometimes find the perpendicular bisector. Sometimes division into two equal parts. Sometimes the wording given is find out the radius, diameter is given. In all the cases, we will apply this method that I am going to discuss. One more time I am repeating, axis of symmetry. Second is perpendicular bisector. Third is division into two equal parts. And fourth is diameter is given. The question is to find out the radius and draw a circle. So in all the sums, single method is applicable. Now, first question is draw AB of length 7.3 centimeter. So start drawing a line segment. First question, a line segment 7.3 centimeter. Fine. So this is A, this is B, and what is the measure of this line segment? 7.3 centimeter. Fine. So this is your first step. This is the first step. Second step is divide this number by 2. Second step, step number 2 is divide 7.3 with 2. Divide this 7.3 by 2 as the question is find the axis of symmetry. Axis of symmetry means division into two equal parts. हमने चैप्टर की है ना सिमेट्री का. What is the meaning of symmetry? Symmetry means division into two equal parts. So that's why divide this 7.3 by 2. Now start. 2 3s are 6. Decimal 2 6 are 12. That's it. Okay. 3.6 something. This is 3.6 centimeter. No need. No need to divide this completely. No need of complete division. Fine. So this is near about 3.6 centimeter. Now construct a line segment 2 or 3 point more than 3.6. If after division we will get 3.6, then you will draw a line segment 3.8. डिवीजन के साथ हमें क्या मिला 3.6. बट जो आप साइड पे रफ में एक लाइन लगाओगे वो 3.6 नहीं लगानी. कितनी लगानी है? 3.8 और 3.9. योर विश. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज in the rough construct a line segment. और मैंने इसको कितना लिया है? 3.8. Always construct a line segment in rough 2 or 3 points more than the result after the division. Okay. अगर आप 3.8 ले रहे हो वो भी सही है, 3.9 लोगे वो भी सही है. ठीक है. But avoid taking more. Now open your compass this much. Now open your compass 3.8. Open your compass this much. Fine. Now put your compass. We have 2 points in this question. One is A and second is B. Now put your compass at A. Draw one arc upper and one arc lower. जितनी मर्जी साइज की, जितनी मर्जी साइज, जरूरी नहीं है इतना लगाना है, आपकी मर्जी है. और बड़ा लगाना है बड़ा लगा लो आर्क का साइज. नाउ करेंगे. नाउ पुट योर कंपास एट बी.
Now put your compass at B like this, like this. Very good. अब ये ज्वाइन हुआ ऐसे, कटिंग होगी। और बेटा वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है आपकी कटिंग भी ऐसी होगी, कटिंग होनी चाहिए। आपकी कटिंग ऐसे भी हो सकती है, ऐसे, और लोअर में ऐसे, बिकॉज मेरा स्केल भी बड़ा है और मेरी कंपास भी बड़ी है। कटिंग होगी, जरूरी नहीं है ऐसी होगी, कैसे भी हो सकती है। आपकी कटिंग आपके अकॉर्डिंग आएगी। हाँ वेरी गुड। हाँ जी बोलो बेटा। Now open your compass. Yes. Yes, तो भी आएगा। Okay. Now this is A, this is B, and this is 7.3 centimeter. Now put your compass, open your compass this much, put your compass at A, 1 arc upper, and this is 1 arc lower. Then put your compass at B, 1 arc upper and 1 arc lower, like this. Yes Bhavya? Yes Bhavya, tell me. हाँ बिल्कुल सही है। Yes Bhavya? मैंने पूछा था कि आपने ना मैंने आपसे ना पूछा था कि आपने ना स्टार्टिंग में बोला था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और मैम वो ना मेरे को आवाज क्लियरली नहीं सुन रही थी, तो मैम मेरे को दोबारा से बता दोगे? मुझे आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, आप क्या बोल रहे हो? मैम मैं कह रही थी जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो मैम वो ना मेरे को क्लियरली आपकी बात नहीं सुन रही थी, तो आप एक बार दोबारा से रिपीट कर दोगे? Axis of symmetry is also known as perpendicular bisector, division into two equal parts. मैंने बोला था आपको कहीं पे भी ये वर्डिंग होगी, दिखेगी, तो आपने यही मेथड अप्लाई करना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी लिखा हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिखा हो सकता है, डायामीटर भी लिखा हो सकता है, और डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स भी। अगर इन 4 में से कुछ भी लिखा है तो यू विल अप्लाई दिस सिंगल मेथड। ओके, ये बोला था मैंने। यस कनव? मैम जो आपने डिवीजन किया मैम उसमें तो हमारा रिजल्ट आया 3.6 सेंटीमीटर, तो मैम आपने तो वहां पर 3.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाई है। ये मेथड है इस सम को करने का। ओके मैम, मैं वही तो बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ भी। आपका डिवीजन करके जो भी आया, आपने जो लाइन बनानी है उतनी नहीं बनानी, उससे 2 और 3 पॉइंट्स बड़ी बनानी है। ये इस सम को करने का मेथड है। ओके फाइन, नाउ ड्रॉ लाइन like this. That's it. So this line is the axis of symmetry. ये जो मिडल में से लाइन जा रही है, this line is the axis of symmetry. So like this we will solve the sum. Done? Yes. Good, good. बिल्कुल सही है। Very good. Well done. Put arrows. ऋत्विक पुट एरोज, एरोज आर कंपल्सरी। मैंने आपको पहले बोला है आपकी आर्क्स ऐसी नहीं बनेगी। ये मेरी ऐसी क्यों बन रही है? क्योंकि मेरा कंपास और स्केल दोनों बड़े हैं। आपका मेजरमेंट आपके अकॉर्डिंग आएगा। ओके, वो कैसा भी हो सकता है, बस कटिंग होनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड क्वेश्चन। और बेटा ये जो हम स्लाइटली मोर देन ओपन करते हैं ना कंपास, इसका रीजन है भी कटिंग इजीली हो जाती है। अगर आप 3.6 भी ओपन करोगे ना, कटिंग तब भी हो जाएगी।
बट कटिंग इजिली नहीं होती। बट अगर आप उसको स्लाइटली ओपन कर देते हो ना ज्यादा बड़ा, तो कटिंग इजिली हो जाती है आर्क्स की। अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भी 3.6 से 3.8 ही ओपन करना है। 3.6 से भी आ जाता है, बट वो फिर कटिंग बहुत दूर जाके होती है, कटिंग नहीं होती। हाँ, पर बहुत ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। बट माइंड में रखो, ऑलवेज प्रेफर 2 पॉइंट्स मोर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, draw a line segment of length 9.5 centimeter and construct its perpendicular bisector। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग से पहले बोला है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के प्लेस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, perpendicular bisector word is given, it means we will apply the same method. Now the line segment is 9.5 centimeter. So first of all, you will construct a line segment 9.5 centimeter. This is A. Now, this is A, this is B. Now in this question, what is the measurement of this line segment? 9.5 centimeter. Now, what is the second step? Jashanpreet, what is the second step? Perpendicular bisector. Bisector means division into two equal parts. So what is the next step? Very good. In the next step, you will divide this 9.5 by 2. Well done. Now, 9.5 divided by 2, 2 4s are 8, 4.7. This much is sufficient, 4.7. Now, we will draw a line segment is equal to 4.9 और 5, both are correct. Okay? अगर आपने 4.9 से करना है 4.9 से कर लो, 4.9 के बाद 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर से करना है 5 सेंटीमीटर से कर लो। ओके, नाउ हाँ, चाहे 3.8 कर लो चाहे 3.9 कर लो, नहीं इतना बड़ा मत करो, नो नीड। नाउ दिस इज 4.7, now this is 4.9 centimeter. 4.9 or 5, both are correct, both are correct. Okay, so select one according to your wish. Now open your compass, open your compass this much. Now what is the next step? Pranav, what is the next step? Make arcs, arc nahi, arcs. Make arcs from A. One is upper and second is lower. Surround. Now from A, one arc upper and one arc lower. Similarly from B, with the same size, one arc upper and one arc lower. ये देखो मेरी कटिंग नहीं हो रही, कटिंग नहीं ना हो रही, तो मैं इसके साइज इंक्रीज कर दूंगी। और ये देखो मैंने इंक्रीज कर दिया, ज्वाइन हो गया। अगर कटिंग नहीं हो रही तो इंक्रीज द साइज, ज्वाइन हो गए, हो गया, फाइन। हाँ, गुड गुड। हाँ, लाइन ड्रॉ कर दो बीच में से, वेरी गुड, यस, गुड। ओके, now we draw a, well done, put arrows. Now we draw a line, put arrows. हाँ बस, put arrows. So this line is the perpendicular bisector. Perpendicular means here the construction of 90-degree angle. Perpendicular word is used for 90-degree angle. So this angle is 90 degree and these two parts are equal in length. Okay, point vary कर सकता है, मे बी ये आपका 4.8 हो जाए, मे बी
ठीक है, और ये आपका इधर से 4.7 हो जाए, इतना वेरी हो सकता है, बट ये नहीं होगा भी ये 9.5 है तो इधर आपका 6 आए और इधर आपका 3.2 या 3.4 ऐसे समथिंग आए, इतना वेरी नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड का मेजरमेंट राइट के मेजरमेंट से 1 पॉइंट वेरी कर सकता है, क्योंकि कभी कंपास का स्लाइटली साइज चेंज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है भी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इधर से आपका 7 आ रहा है और इधर से आपका 3 आ रहा है, वो गलत है। ओके हाँ हाँ ठीक है, यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ जी बेटा कनव, यहाँ पे 90 का बना भी सकते हो, क्योंकि वर्ड गिवन है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वर्ड इज गिवन, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 90 मार्क किया, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। ओके नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, come to the question number 3rd. Come to the third question, question number 3rd. Now let's start with third question. Draw again perpendicular bisector wording is given in the book. Yes, draw the perpendicular bisector whose length is 10.3 centimeter. Again same question. First step is to draw a line of measure 10.3 centimeter as given in the book. So this is the first step. The first step is, and what is the name of this line segment? XY. If the name is not given, then you will assign name according to your wish. But if the name is given, then you will use the given names. Okay, then the name is XY and the measure of this is 10.3 centimeter. So this is 10.3 centimeter. This is 10.3 centimeter. What is the next step? Very good. Divide 10.3 by 2 because the question is based on construct perpendicular bisector. Bisector means division into two equal parts. Fine. Now 10.3 5.1 और 5.2 both are correct. नहीं इसका आंसर मैं बोल रही हूँ, चाहे इसको 5.1 कंसीडर करो चाहे 5.2, क्योंकि अभी आगे हमने इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं किया ना, सो 5.1 आ गया जैसे. नाउ हियर टेक 5. If this is 5.1, 5.3 or 5.4 both are correct. So this is 5.3 centimeter. Okay? अगर आपने 5.4 लेना है वो भी करेक्ट है. वो मैं कराऊंगी. सिट कराऊंगी बेटा, अभी मुझे ये एक्सप्लेन करने दो. वेट. ओके, नाउ ओपन योर कंपास. 5.3. We are repeating same steps again and again. हमने कोई नया स्टेप किया अभी तक? फर्स्ट क्वेश्चन में भी वही, सेकंड में भी वही, थर्ड में भी वही, सेम. ओके, नाउ पुट योर कंपास एट x. 1 arc upper, 1 arc lower. Now put your compass at y. 1 arc upper, 1 arc lower. ज्वाइन नहीं ना हो रहा तो मैं एक्सटेंड करके ज्वाइन करवा दूंगी. कंपास को नहीं एक्सटेंड करना, कंपास का साइज नहीं चेंज करना, आपने मेजरमेंट उसका बड़ा करना है. फाइन, फ्रॉम हियर लाइक दिस, और इसकी कटिंग हो जाएगी. होने दो, ये देखो हो गई ना. इट मीन्स फ्रॉम हियर like this. Now the next is, in this question we have A and B part also.
वही बताने लगी हूँ, कह तो रही हूँ A and B part also. Now in this question we have A and B part also. A part is take take any point P on the bisector. Now tell me. कोई बात नहीं, न्यू ले लेना ना आज. Now tell me, this line segment is a perpendicular bisector or this is a perpendicular bisector? Students, write down in the chat box. Horizontal is perpendicular bisector or vertical is perpendicular bisector? Yes, vertical is perpendicular bisector. The question is, take any point P on the bisector. So I am going to take P here. उन्होंने क्या बोलना है? टेक पी ऑन बाइसेक्टर, जहां मर्जी ले लो पी. ओके, ऐसा नहीं है, नो, वहां पे तो ना लेना है. ऑन द बाइसेक्टर, ये हमारा बाइसेक्टर है, इस पे थोड़ी ना लेना है. ये हमारी वर्टिकल लाइन बाइसेक्टर है. यहाँ पे टेक एनी पॉइंट पी इन द ऑन द बाइसेक्टर, जहां मर्जी पी मार्क करो. क्या नहीं हो सकता? हाँ, तो लाइन सेगमेंट लाइन में से ही बनती, तो यहाँ पी लगा दे, यहाँ मार्क कर दे पी. क्यों नहीं हो सकता? लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं होते? थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में किया क्या? यही तो किया है. नाउ ज्वाइन पी विद एक्स, ज्वाइन पी विद एक्स एंड पी विद वाई. क्योंकि उन्होंने हमें बुक में पूछा है चेक पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई और नॉट. हाँ जी, यस. व्हाट अबाउट चेक पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई? यस, वेरी गुड कनव. बेटा ये ऑलवेज इक्वल आएगा. हाँ, बिल्कुल 101%, ये पूरा आएगा इक्वल. अगर नहीं आ रहा, इट मींस आपकी कहीं पे मिस्टेक हुई है कंस्ट्रक्शन में, आपकी कंपास का साइज चेंज हुआ होगा. 101%. मैंने आपको पहले बताया 1 पॉइंट का फर्क आ सकता है, 1 पॉइंट डिफर हो सकता है. मींस लेट मे बी ये 6 आ जाए और ये 5.9 आ जाए, वो एरर आ सकता है. वो पेंसिल की वजह से भी आ सकता है, कभी कभी पेंसिल हमारी मोटी होती है. बट अगर आप कहो जी ये 6 है और ये 5.5 आ रहा है, तो वो गलत है. इतना वेरी नहीं हो सकता, पॉइंट वेरी हो सकता है. ओके, सो यस, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई. कानिश, योर रिजल्ट इज 100% करेक्ट. ओके, यस. व्हाट अबाउट 5 हाँ 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 1 पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट लिखोगे आप यस यस पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई. मैंने आपको पहले बोला है 1 पॉइंट डिफर हो सकता है, पर 1 से ज्यादा नहीं डिफर होगा. जैसे प्रणव का एक आ रहा है 6 और एक आ रहा है 5 पॉइंट, वो मे भी उसकी कहीं पे कंपास थोड़ी सी चेंज हुई होगी. हाँ, दोनों 6 है. वेरी गुड. ओके, सो यस, दिस इज ऑलवेज यस. नाउ कम टू द बी पार्ट. बी पार्ट इज if m is the midpoint of xy. अब आप जो बोल रहे थे xy का मिड पॉइंट, एंड मिड पॉइंट क्या होता है? जहां पे ये कटिंग होती है. दिस इज m, दिस इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ xy. इट मींस जिस पॉइंट पे आपकी कटिंग होगी आके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, दिस. नाउ इन द बी पार्ट, व्हाट अबाउट in the B part the question is what about mx and my. xy नहीं है, अपनी बुक में चेंज करो, xy नहीं आना. if m is the midpoint of xy, what about mx and my? बुक में गलत मेंशन है, करेक्शन करो. what about mx and my? students, make correction here. What about mx and my? In the book xy is given, वो wrong है. Okay,
नहीं नहीं, बी पार्ट में, एंड में एम एक्स एंड एम वाई, एम वाई। यस ऋषिता। यस मैम। मैम मैंने आपसे पूछना था कि जो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई है वो चेक कैसे करना है, दोबारा बता दो। स्केल से मेजर करके। ओके मैम, अगर दोनों साइड पे सेम आया तो भी वो तो इज इक्वल आना ही आना है सेम, 101% आएगा। अगर नहीं आ ओके रहा मैम। इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है। और ओके मैम। मैं और एक बात बोल रही थी, पॉइंट डिफर हो सकता है, मे बी ये 6 है और ये 5.9 आ जाए। 1 पॉइंट डिफर हो सकता है बिकॉज ऑफ कंपास एरर एंड पेंसिल एरर। बट अगर आप बोलो ये 6 है और ये 5.8 आ गया तो ये इतना नहीं, फिर गलत है। और ये हमेशा ओके मैम। इक्वल आएगा, हमेशा, ऑलवेज इक्वल। ओके, यस मैम। मेरा इक्वल आ रहा है, पर मैंने आपसे पूछना था विथ कि स्केल। जैसे आपकी कटिंग हो रही है ना हाँ जी, हाँ जी। मैम, जैसे आपकी cutting हो रही है ना वैसे मेरी नहीं हो रही, मेरा ना ऐसे पूरा क्रॉस बन के जा रहा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने आपको पहले बोला है मेरा स्केल भी बड़ा है, मेरी कंपास भी बड़ी है। आपकी कटिंग ऐसी नहीं होगी, आपकी कटिंग आपके अकॉर्डिंग होगी। आपका वो एक्स बन रहा है ना पूरा बड़ा, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे भी बनेगा, ऐसे ऐसे भी बनेगा, अपर से लोअर तक ऐसे, ये भी सही है। कानिश का ऐसे ही आ रहा था ना, ये भी सही है। आपकी कटिंग आपके अकॉर्डिंग होगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस कटिंग होनी चाहिए। ओके, हाँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। नाउ व्हाट अबाउट एम एक्स एंड एम वाई? इक्वल। मिड पॉइंट का मतलब ही इक्वल होता है। मिड पॉइंट मीन्स, इट मीन्स यस एम एक्स इज इक्वल टू एम वाई। सेम 1 पॉइंट डिफर कर सकता है, बट 1 से ज्यादा अगर पॉइंट डिफर हो रहा है इट मीन्स डू अगेन। हाँ, 1 पॉइंट मैंने आपको पहले बोला, 1 पॉइंट कंपास का एरर हो सकता है, आपकी पेंसिल की वजह से एरर हो सकता है ना, आपकी कॉपी करते करते हिल गई, कंपास का साइज चेंज हो गया, ये लाइन आपकी थिक हो गई, तो 1 पॉइंट का एरर इट्स ओके, बट मोर देन 1 अगर हुआ तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। नहीं 2, हाँ दोबारा 2 का नहीं फर्क होना चाहिए। ओके, और ये आपकी जो लाइन है ना ये बिल्कुल थिन होनी चाहिए, हाँ पतली। ये तो मैं चौक से कर रही हूँ, दैट्स वाई ये मेरी इतनी थिक है। बट आपकी ये जो मैंने कल ही आपको बोला था, कंस्ट्रक्शन में ऑलवेज यूज वेल शार्प्ड पेंसिल। ओके, डोंट यूज थिक पेंसिल, तभी एरर आते हैं, तभी ये पॉइंट चेंज होते हैं। जो आप बोल रहे हो ना मेरा 5.4 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है। ओके, नाउ कम, हाँ कोई बात नहीं, 1 पॉइंट में बोलते रही हूँ, कम ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं। Kani, sit down. Yes. Now, students, next is question number 5th. Question number 4th is different. We will discuss tomorrow. We have less time. So, let's start with question number 5th. Question number 5th is same as 1, 2, 3. Yes. Question number 4th is also same. But in 4th question, we have 2 more steps. क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, पर उसमें 2 और स्टेप्स है, तो दैट्स वाई हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम कल करेंगे उसको, ठीक है। यस, नाउ कम टू द 5th क्वेश्चन। With PQ of length 6.1 centimeter as diameter, draw a circle. Diameter is given to you 6.1 centimeter. So let's start. Construct 6.1 centimeter. This is P, this is Q, and this is 6.1 centimeter. This thing is given to you. यही given है ना आपको? This thing is given to you. Now, but to construct a circle, we need
radius. This 6.1 centimeter is a diameter, but to construct circle we need radius. Again, radius is divided by 2. Yes, so 6.1 division by 2. Let's start your division. So 2 3s are 6, 3 or 3.1 both are correct. 3 or 3.1. Select any, both are correct. Okay, now repeat again. Here you will construct a line segment. What is the length of line segment? 3 point. क्यों? मैंने क्या बोला है? जो साइड पे लाइन बनानी है वो हमेशा इससे 2 पॉइंट्स ज्यादा बनानी है. हाँ. अगर ये 3 है तो कितनी बनाओगे? 3.2. और अगर आपने 3.1 लिया है तो कितनी बनाओगे? 3.3. यस. नाउ क्यों? क्या रिक्वायरमेंट है कानिश? 3 4 इतने भी मैंने बड़े नहीं बोले, 2 3 पॉइंट्स बोलने हैं. हाँ. नाउ okay, so this is, if this is 3.1 और 3, तो ये चाहे 3.2 लो चाहे 3.3 लो. ओके, 3.2 और 3.3 both are, take any one, both are correct. Okay, now put your compass here, open again, put at B, 1 arc upper, 1 arc lower, again put at Q, 1 arc upper, 1 arc lower. सब बनेगा बेटा, वेट, सब बनाएंगे, पेशेंस रखो, सब बनेगा. नाउ सर्कल भी बनेगा. ओके, सो दिस इज सेंटर. अगर ये पूरा डायामीटर था तो ये कितना क्या हो गया? रेडियस. इफ दिस फुल इज अ डायामीटर, तो मैंने ये सारा प्रोसीजर क्यों किया? रेडियस के लिए. ये जो मैंने सारे स्टेप किए हैं, व्हाई? रेडियस के लिए. नाउ दिस इज रेडियस, दिस दिस इज रेडियस. ये रेडियस है. ओके, नाउ हमने सर्कल बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस जितना कंपास को ओपन करो, ओ पे रखो, सर्कल बनाओ लाइक दिस. डायरेक्ट सर्कल नहीं बनाना, पहले आपने उसके 2 पार्ट्स करने हैं. 2 पार्ट्स करने के बाद में सर्कल बनेगा लाइक दिस. और आपका सर्कल ये दोनों पॉइंट्स को टच करके जाना चाहिए. अगर नहीं जा रहा तो गलत है. हाँ जी, अच्छा, आपके दोनों एंड पॉइंट्स को टच कर रहे हैं. हाँ, वेरी गुड. बस नाउ आफ्टर दैट, वेरी गुड, वेल डन, गुड. ये तेरा सर्कल सही नहीं है, ओवल बनाया हुआ है तूने. यस, गुड. और स्टूडेंट्स, अगर आपका ये दोनों पॉइंट्स को टच नहीं कर रहा, इट मींस आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है, या फिर अपना ये साइज चेंज करके देखना. जैसे 3.2 लिया है या 3.3 लिया है तो 3.4 से अगर होता है तो ओके.
गुड। हाँ जी नैतिक, हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आपकी पेंसिल ही बहुत बेटा मोटी है, करना ऐसे ही है, पर वो थोड़ा थोड़ा रहना नहीं चाहिए। ओके आपका इतना छोटा बन रहा है कि इनका भी छोटा ही बना है? छोटा ही है, ठीक है। सब दिखा रहे हैं, तू नहीं दिखा रहा, ठीक है। So if diameter is given na, then you will find radius like this. हाँ, अगर आपको डायामीटर गिवन है और क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, then you will always find the radius by this method. First of all, divide this by 2. After that, open your compass, 2 or 3 more points, the result after the division. Okay, after that you will get, after this cutting you will get radius. This is radius, this much is radius. After that, put your compass at O and start drawing a circle. Fine. Bani, unmute yourself. Yes Bani, यस मैम। बन गया? यस मैम। गुड। हर्षिया, यस मैम। हर्षिया कंस्ट्रक्शन डन? मैम यस। Send me the picture. Fine. Good. Well done. यस मैम। मैम वो जो एक्स बना मैम थोड़ा सा मैम मतलब अनटाइडी टाइप है उसका, मेरा वो कंपास थोड़ा हिल रहा था, बाकी मैम वो पॉइंट्स पे टच होके बना सर। दोबारा से करना, ठीक है? So ओके मैम। rest we will discuss tomorrow. Fine. So bye bye.